Hello, everybody. So, yesterday, Anu Menon and I started our sports podcast called The Bad Pundits, the name of which we might be changing for completely different reasons. But while we were promoting for it on Twitter, somebody actually replied with a very interesting point. They said, please don't talk about football like we non football followers don't understand. विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वैलिड पॉइंट. हम काफ़ी फुटबॉल फॉलोइंग लोग ना काफ़ी बोलते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि नॉन फुटबॉल लोगों को जो समझ ही नहीं आ रहा और उन्हें लग रहा है पता नहीं क्या पकैती कर रहे हैं ये लोग. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अ फुटबॉल एक्सप्लेनर वीडियो वेयर आई बी एक्सप्लेनिंग काइंड ऑफ फुटबॉल थिंग्स लाइक लीग कंसेप्ट एंड चैंपियंस लीग एंड एवरीथिंग. दिस इज नॉट फॉर फुटबॉल रूल्स कि ऑफ साइड कब होता है, थ्रो कब होता है ये सब के लिए ये वीडियो नहीं है. बट दिस इज मोर अबाउट कंसेप्ट अराउंड द लीग, द चैंपियंस लीग, डार्बी मैचेस, एवरीथिंग लाइक दैट. सो इन केस यूर ऑलरेडी फुटबॉल फॉलो, आप काफ़ी ऑलरेडी फुटबॉल के बारे में जानते हो, काफ़ी फॉलो करते हो, मे बी दिस नॉट द राइट वीडियो फॉर यू. बट देन यू आर फ्री टू स्टिक अराउंड एंड चेक अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ और उसमें करेक्ट करना कि ये तूने गलत बोला, बिकॉज लेट्स फेस इट, इंटरनेट में वो करने में बहुत मज़ा आता है. सो just explaining football concepts. So this is kind of like a football concept for dummies. So let's start. Starting with the English Premier League. Now to essentially explain it, I will be using IPL terms कि IPL का जैसे लीग सिस्टम है, बिकॉज IPL का कंसेप्ट और फंडा सबको काफ़ी क्लियर है. नाउ IPL का तो जैसे इट्स अ मिक्स हाइब्रिड ऑफ लीग एंड नॉकआउट. लीग आपको लीग सिस्टम वो होता है जिसमें जो भी उस लीग में है दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर होम एंड अवे, एंड नॉकआउट सिस्टम उसमें है जिसमें ऑब्वियसली देयर इज अ नॉकआउट, टू टीम्स प्ले ईच अदर एंड देयर इज अ नॉकआउट. सो IPL हैपेंस टू बी अ हाइब्रिड ऑफ लीग एंड नॉकआउट. टॉप फोर में सब एक दूसरे को खेलते हैं, फिर टॉप फोर में जाके नॉकआउट होते हैं. बट दीज लीग्स, द इंग्लिश प्रीमियर लीग, they are just league systems. So to explain the concept, first of all these European nations, for instance England का English Premier League हो गया, then Italy का Serie A बोलते हैं उसको, Serie A हो गया, Germany का the German League Bundesliga हो गया, Spanish League which is La Liga, वो हो गया, एंड फ्रेंच लीग जिसको लीग बोलते हैं, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक्चुअली आई एम नॉट इवन सर्टन कि लीग होता है, लीग वन होता है, बट बट बिकॉज ऑफ द फ्रेंच एक्सेंट एंड ऑल एंड पार्ट माई फ्रेंच. बट उस पर काफ़ी इंटरेस्ट जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज उसमें अभी मेसी भी चला गया. नो हार्ड फीलिंग्स टू नीमार एंड एम्बापे फैंस. बट तो दीज आर ऑल द फर्स्ट डिविजन लीग्स. नाउ आई से फर्स्ट डिविजन लीग बिकॉज just to get into the just to explain the whole concept, I will be getting into the English Premier League. जो English Premier League का concept है, that is the English Premier League is the first league. There's a first league, then there's the second division, third division. How it works is the first division के जो all 20 teams, so there's 20 teams in English Premier League. Similarly 20 teams would be in Italian Serie A, Bundesliga I think there are 18 teams, but same concept kind, and La Liga obviously again 20 teams. So these 20 teams, everybody plays against each other, home and away. सब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं. So every team basically plays all the other 19 teams home and away. For instance अब club हो गए, like every club has a home ground or home stadium. For instance Liverpool का Anfield है, which is the best. But again, sorry, that's just as a Liverpool fan coming out. Obviously every club supporter feels that way about their own club. Manchester United का Old Trafford है, home stadium. Chelsea का Stamford Bridge, then and likewise Emirates for Arsenal, Manchester City का Etihad. So likewise, so every team plays against each other home and away, and home and away. So probability experts कितने total matches हो गए for every club? If you said 38, that's amazing, because every club basically would be playing 38 matches in the league, because 19 के साथ home and away into 2 38 हो गया. And at the end of the league, whoever other is at the top, they have basically won the league. That's how the league winner is decided. That's how English Premier League winner is decided. That's how La Liga winner is decided. That's how Bundesliga league winner is decided. And the bottom three clubs, in this first division में जो bottom three clubs है, they get relegated to the second division. So जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश फुटबॉल सिस्टम में फर्स्ट डिवीजन हो गया जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, फिर सेकंड डिवीजन हो गया, तो ये जो बॉटम थ्री हो गए जो आफ्टर 38 मैचेस लोएस्ट पॉइंट पे, वो रेलीगेट हो जाती है टू द सेकंड डिवीजन. एंड सेकंड डिवीजन के टॉप थ्री जो है वो आ जाते हैं टू प्रीमियर लीग. एक्चुअली वो टॉप टू आते हैं, एंड थर्ड इज अगेन बाय अ कॉम्पिटिशन जो आता है. बट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन जस्ट थिंक दैट
थ्री बेसिकली रेलीगेट हो गए एंड तीन टीयर टू से ऊपर आ गए. सेम कंसेप्ट इज फॉलोड बेसिकली एवरीवेयर. ला लीगा में भी सेम ही कंसेप्ट है कि जो 38 मैचेस के एंड में whoever's ऑन टॉप ऑब्वियसली दे विन एंड द लास्ट थ्री जो है वो रेलीगेट हो जाती है. इन केस देयर इज अ टाई अप टॉप, जो कि काफ़ी रेयर ही होता है, बट वो गोल डिफरेंस से देखा डिसाइड किया जाता है कि हु विल बी ऑन टॉप. ऑब्वियसली ईपीएल अगर आप देखोगे, ईपीएल विच इज़ द एक्रोनिम फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग, ईपीएल कमेंटेटर्स बोलते रहेंगे कि अरे ईपीएल इज द बेस्ट बिकॉज इट्स द टफेस्ट लीग, बिकॉज एनीबडी कैन बीट एनीबडी, दे मस्ट हैव डन दैट इन बार्सिलोना बट कैन ही दे डू दैट इन अ कोल्ड नाइट इन सॉन्से, ऐसे करके रेफरेंसेस. बट दैट्स अ टिपिकल इंग्लिश कमेंटेटर्स थिंग. वो अपने हर चीज़ को ज़्यादा ग्लोरीफाई तो करते ही है कि हमारा सब बेस्ट है, हमारा विंबलडन भी द चैम्पियनशिप है. बट दैट्स अ डिबेट फॉर अ कम्प्लीटली डिफरेंट डे. सो ये बेसिकली कंसेप्ट हो गया द लीग सिस्टम, जिसमें नॉकआउट नहीं है, कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट एवरी टीम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, होम एंड अवे, and go and winning. Now at a European level पे there's a tournament called the Champions League. Actually European level पे there are two tournaments. Tier 1 is Champions League and Tier 2 is Europa League. So जो Champions League है, it is the Europe level पे tournament. इसमें क्या होता है, जो जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है टॉप 20 में फर्स्ट तो जीत गया. सो दिस अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर द फर्स्ट 4 पोजीशंस, पहले 4 पोजीशन के लिए, क्योंकि टॉप 4 क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग. सो इंग्लिश प्रीमियर लीग के टॉप 4 गो फॉर द चैंपियंस लीग. बुंदेसलीगा के भी टॉप 4 वुड बी गोइंग फॉर चैंपियंस लीग. देन Serie A top 4 would be going for Champions League. La Liga top 4 would be going for Champions League. तो ऐसे सारे यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादातर, मतलब जो मेन कंट्रीज हैं उनसे 4 ही आते हैं, जो कुछ नेशन से उससे 2-3 ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेडिशन होता है, और दे कम इन प्ले इन चैंपियंस लीग. नाउ चैंपियंस लीग द फॉर्मेट इज, पहले उनका ग्रुप स्टेज होता है. सो जो सारे क्लब्स आ गए उनके आपस में करके मिक्स करके वो बाय ड्रॉज डिसाइड होते हैं, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप 3, ग्रुप डी करके. एंड उनमें जो टॉप 2 ऑफ ईच ग्रुप क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स. सो राउंड ऑफ 16 के लिए वो जाते हैं, और उसके बाद राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल्स, फिर सेमीफाइनल्स, एंड फिर फाइनल्स करके चैंपियंस लीग विनर हैपेंस. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस tournament, Champions League. And obviously Champions League winner are supposed to be the best team in the Europe that year. So for instance Chelsea won the Champions League last year, and that was a huge deal for them. Now at European level only this is the tier 1 tournament. There's a tier 2 tournament also, which is the Europa League. तो Champions League football, जिसको Wednesday night football भी आप सुनेंगे कभी कभी, Wednesday night football बोलते हैं. It's supposed to be very prestigious, qualifying for even Champions League. तो इसीलिए जो बड़े so tier 2 is the Europa League, जिसको Thursday night football, because वो Thursday nights को होता है. And so उसके लिए जो भी जैसे अगर प्रीमियर लीग ले ले, प्रीमियर लीग में टॉप 4 तो चले गए चैंपियंस लीग के लिए. द 5th and 6th दे क्वालिफाई फॉर यूरोपा लीग. सो इट इज़, वो काफ़ी जोक भी होता है कि अरे दिस टाइम फॉर, जैसे कोई बड़ा क्लब चैंपियंस लीग के लिए नहीं कर गया बट जस्ट यूरोपा लीग के लिए हुआ कि दिस टाइम थर्सडे नाइट फुटबॉल फॉर यू करके, ऐसे काफ़ी ट्रोल भी होता है, आपने मीम्स भी देखे होंगे शायद. सो द 5th and 6th दे प्ले फॉर यूरोपा लीग, एंड दे प्ले फॉर यूरोपा लीग एज वेल एज जो चैंपियंस लीग में याद है ग्रुप स्टेजेस बताए थे, तो ग्रुप स्टेजेस में जो भी थर्ड होता है, क्योंकि टॉप 2 तो आगे चले गए राउंड ऑफ 16 के लिए, जो थर्ड होता है वो निकल जाता है चैंपियंस लीग से, एंड दे जॉइन द यूरोपा लीग. तो उसके बाद वो भी यूरोपा लीग में आ जाते हैं, और फिर उनके बीच में, और यूरोपा लीग उनके बीच में होता है. सो दैट्स हाउ द चैंपियंस लीग एंड द यूरोपा लीग वर्क, एंड this league system works. Now obviously I've already explained a little bit about the home and away concepts, and there are some of the prominent teams from each league you must have already heard a lot about, like for instance Serie A के हो गए, Juventus is वो जीतती रहती थी बेचारी, इस बार इंटर मिलान बट जीत गई, बट Juventus, Inter Milan, AC Milan, Atlanta, Napoli, these are clubs that you might have heard about. Napoli obviously has a Maradona used to play for that club. Then in Spanish league, which is known as La Liga, उसमें Barcelona and Real Madrid and Atletico Madrid, these are the 3 main people who keep fighting with each other basically. तो इससे पहले तो ज़्यादातर Real Madrid और Barcelona में एक एक करके जीतते रहते थे, but Atletico Madrid for the last many years, जब से उनका Griezmann has been their manager, they have been a huge force. तो उन तीनों में these people, इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा. Real Madrid और Barcelona का जो आपस में मैच होता है उसको El Clasico करके बोला जाता है. So that's the match
between them. It's a huge thing. El Clasico is going to happen, so that's also a big deal. Similarly, Bundesliga is again Bundesliga में भी थोड़ा वैसा वाला ही concept है कि एक club जो है Bayern Munich has dominated Bundesliga mostly. So बट बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिक है, बोरुसिया डॉर्टमंड है, ग्लैडबैक है, आरबी लाइप्जिग विच इज़ वन ऑफ द फ्यू ईस्ट जर्मनी से आए हुए क्लब्स वो है. सो एंड लीगा वन में तो ज़्यादातर पीएसजी जीती है, बट लास्ट ईयर पीएसजी हार गई विच वॉज ह्यूज फन टू सी, और इस साल अगर ऐसा हो गया बड़ा ही मज़ा आ जाएगा. सो नाउ कमिंग टू द मैनेजर्स कंसेप्ट बेसिकली. सो एवरी आप काफ़ी इंडिविजुअल्स जो फुटबॉलर्स हैं उनके तो नाम सुनते ही होंगे, बट एट द सेम टाइम जो फुटबॉल क्लब्स हैं उनके मैनेजर्स के भी बहुत बार नाम सुनते होंगे. सो दीज आर सम ऑफ वेरी पावरफुल पीपल एंड दे आर वेरी डायनामिक, हैव ग्रेट पर्सनैलिटीज, kind of people. So for instance, one of the best managers ever is Jurgen Klopp, because obviously Liverpool. So Jurgen Klopp Liverpool के मैनेजर है. वो हर मैनेजर अपने क्लब का बेसिकली करता धरता होता है. They are the final say. Like cricket is a very captain dominated sport, कि captain makes the decisions in everything. Football on the other hand is a very manager driven sport. तो managers lay out the tactics and everything. So Jurgen Klopp is manager of Liverpool. Guardiola is manager of Man City, Manchester City. Pep Guardiola इससे पहले जो कि मतलब बहुत सारे Bayern Munich, Barcelona and everything he has managed. And Klopp obviously इससे पहले वो Borussia Dortmund, which is another great club. I really like that club. उससे आए. So similarly different. So these are different. There are different managers for different clubs. टूशल हो गया, वो चेल्सी का मैनेजर है, इससे पहले वो पीएसजी का ही था. हाँ. एंड सो क्लब्स ऑब्वियसली दीज मैनेजर्स इफ़ दे नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, जैसे कि नौकरी से हो जाता है वैसे ही फायर हो जाते हैं, तो बहुत लोग फायर होते हैं. फॉर इंस्टेंस टॉटनम का इससे पहले मैनेजर वॉज जोजे मोरिनियो. तो मोरिनियो होज अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, वेरी एंटरटेनिंग. उनके काफ़ी डायलॉग्स है ऐसे कि आई एम द स्पेशल वन, प्लीज़ डोंट, आई एम बीइंग मॉडेस्ट, बट आई एम द स्पेशल वन, ऐसा करके काफ़ी इंटरेस्टिंग बकैती मचाई उन्होंने. So he got fired from Tottenham and he has now joined AS Roma, which is a huge loss for Premier League because I really like his personality, and he has joined AS Roma. So वो इस बार AS Roma के वो होंगे. So these are basically some of the prominent managers जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा. Again explaining one more concept of derby. Derby काफ़ी लोग बोलते हैं it's a derby match. Derby match is basically जबकि सेम ही सिटी से कोई दो क्लब्स हो वो एक दूसरे को खेल रहे हो. फॉर इंस्टेंस Liverpool or Everton, they are both it's known as the Merseyside derby because they are from the same city. So it's derbies are generally thoda उसमें मतलब derby matches are supposed to be very unpredictable and also very rough because people really do put in their effort. So for instance Manchester City versus Manchester United would be the Manchester derby. London के बहुत सारे clubs है, for instance Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, these are all London clubs. तो इन सब के लंदन डार्बीज हो गए, कोई नॉर्थ लंदन डार्बी हो जाता है बिकॉज दोनों क्लब्स नॉर्थ लंदन डार्बी. सो डार्बी मैचेस आर जनरली वेरी फियर्स एंड वेरी कंपेटिटिव एंड उसमें ब्रैगिंग राइट्स भी मिलते हैं. सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द कंसेप्ट्स. आप और भी काफ़ी चीज़ें सुनते रहेंगे. फॉर इंस्टेंस रिसेंटली कुछ टाइम में VAR हैज़ बीन अ ह्यूज टॉक्ड अबाउट पॉइंट. VAR के बारे में बहुत लोग बात करते हैं. VAR हो गया वीडियो असिस्टेंट रेफरी, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक द DRS जो क्रिकेट में है, बट VAR इधर हैज़ बीन वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन नेचर. Because of implementation by is very different across different places. And for instance VAR का जो streamlining है in other leagues काफ़ी easy हुआ है. For instance Serie A, La Liga and everywhere, but English Premier League में VAR का implementation के राउंड भी बहुत ज़्यादा debate हुआ है because basically बोलते ही है कि English Premier League के थोड़े referees थोड़े से अजीब से भी है decision making थोड़ा, so you sometimes get the weirdest of VAR decisions. So these are some of the points. Hope मोटा मोटा मैंने फुटबॉल के काफ़ी थोड़े कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए. होप दिस वुड मेक यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द फुटबॉल कंसेप्ट्स. एंड जब आसपास 5 फुटबॉल के लोग ऐसे कुछ ऐसे बोल रहे हो तो आप भी 2-3 शब्द थोड़े इधर से उधर से कुछ बोल के आप भी समझ पाए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप टू सी यू मोर इन दिस चैनल. थैंक यू गाइज.